Assalamu alaikum. It's Abstract Online Support Program. Level is HSSC and your class is first year HSSC 1. Okay, in this lecture, you will learn the remainder theorem and syntactic division, although that you have learned before in your matric class. So exercise 4.5 in first year is all about matriculation, that is remainder theorem and syntactic division. Okay, now students, very easy exercise because it is linked with the matriculation. Use remainder theorem to find the remainder when the first polynomial is divided by the second polynomial. This is first polynomial before the comma, and after the comma the second polynomial. Okay, so let p of x is x square plus 3x plus 7 means first polynomial we suppose p of x. Since divisor is x minus a, that is x plus 1. Okay, so what will be the value of a? If we just compare with x, then a minus a is equal to 1 or a is equal to minus 1. So what is the value of minus a? What is the value of a? Minus 1. Okay, now it means that we have to put in this polynomial the value of minus 1 in terms of x. So by the remainder theorem, p of minus 1 x की जगह minus 1 आ गया, 3 multiplied by minus 1 plus 7 is same. Minus 1 square is 1, plus minus minus, 3 ones are 3, and 7 is same. 7 plus 1 8, 8 minus 3 is 5, so remainder is 5. It means that when you multiply, when you divide this thing by this thing, means x plus 1 जो है ना डिवाइड के बाहर आ गया, x स्क्वायर प्लस 3x plus 7 डिवाइड के अंदर आ गया. It is a divider, it is dividend. Okay, so the remainder would be 5. So this is the shortest method. You can see बगैर डिवाइड किए हुए आपका आंसर आ गया, रिमाइंडर क्या होगा 5 होगा, and you know that it is in matriculation. So question number 2 and question number 3 is homework. It is same as question number 1 and 4. So question number 4 again, this is first polynomial, second polynomial, a value is 3, then put it the value of 3 in the x, you can see here, and the answer is 21 is the remainder. Now this is as same, use factor theorem to determine if the first polynomial is a factor of second polynomial. Factor means if remainder is 0, it means that the first polynomial is the factor of second polynomial. Okay, means if remainder is 0, for example if remainder is 0, okay, p of 1 is 0, then we can say that the this one is with the factor of this. Now let's start question number 5 and 7. Let p of x is equal to x square plus 4x minus 5. This is the second polynomial. Why I am not using first polynomial? Because in previous question we took first polynomial because was the question. Now in this question first polynomial is the factor of this. ठीक है, ये हमें चेक करना कि ये polynomial इसका, तो माइनस ए यहाँ से आएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ये देखो ये आ गई, ए की वैल्यू 1 आ गई. अब इसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर. लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 5, 1 स्क्वायर इज 1, 4 1 ज़ा 4 माइनस 5, 1 प्लस 4 5, एंड 5 माइनस 5 इज 0. ओके, सो पी ऑफ 1 मतलब पी ऑफ 1 जब हमने पुट किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0. So whenever we have 0 answer, then we can say that this polynomial is the factor of this polynomial. Hence by the factor theorem, x minus 1 is the x minus 1 factor of the x square plus 4x minus 5, and this is a. Okay, so just you can ignore this thing. Now this polynomial will be the factor of this. We have to check by this, w minus is equal to minus 2, means a is equal to minus 2, and when we put minus 2 in this polynomial, you can see that again we have 0. Okay, so remainder is 0, so इधर mistake है, remainder 1 नहीं, remainder यहाँ पे भी 0 है. ठीक है, so remainder 0, hence by the factor theorem 2 plus 2 is the factor of this. So question number 5 and 7 is same, you can see the factor theorem, and question number 6 is the homework.
ना क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दोनों में यहाँ पे क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि पावर वाला गेम आ गया यहाँ पे. फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस ए, फर्स्ट polynomial is x minus n, second polynomial is x raised to the power n minus e raised to the power n, and n is a positive integer. Let p of x is equal to x raised to the power n minus e raised to the power n. Then what is the value of x? X is equal to a. Okay, so a put करेंगे x की जगह पे, e raised to the power n minus e raised to the power n, e raised to the power n minus e raised to the power n is 0. So remainder is 0, so it means that this is the factor of this. Okay, again this पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात की थी. अब यहाँ पे हम n इज एन ऑड इंटीजर, मतलब n यहाँ पे ऑड इंटीजर है, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन. ठीक है, सो ऑड इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर पावर में अगर हमारे पास माइनस होगा तो वो माइनस रहेगा, ये वाला. ठीक है, नाउ x की वैल्यू हमारे पास माइनस ए आएगी, तो माइनस ए पुट करेंगे हम. यू कैन सी माइनस ए पुट करेंगे, माइनस a raised to the power n minus a की पावर n. सो माइनस, क्योंकि n इज द ऑड इंटीजर, सो माइनस सेम रहेगा, क्योंकि माइनस 1 माइनस की पावर 1 इज माइनस, माइनस की पावर 3 इज माइनस, माइनस की पावर 5 इज माइनस, सो दैट्स वाई माइनस शुड बी सस्टेन. सो माइनस raised to the power n is minus because n is the odd integer, and plus you can see because n is the odd integer, so this is the plus sign, this is plus sign. Okay, plus is same, plus sign. So minus e raised to the power n plus e raised to the power n is 0, so remainder is 0, so we can say that this is the factor of this polynomial. Now question number 11, when the this polynomial is divided by x minus 2, the remainder is 14, find the value of k. बहुत इजी क्वेश्चन है. मीन्स a की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, 2 को आप इसमें पुट कर दो. ठीक है, 2 को पुट कर दिया आपने, ये देखो 2 को पुट कर दिया, और p ऑफ 2 जो है ना उसका आंसर 14 लिखना है इसके नीचे. क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 14 है. p ऑफ 2 की जगह आंसर क्या लिखना है, 14 लिखना है, और यहाँ से आपने k की वैल्यू निकाल लेनी है. अब इसको समझ लो स्टेप बाय स्टेप. लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसको p ऑफ x बोल दिया. ठीक है, सो सिंस डिवाइजर इज x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 2, सो हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2, माइनस से माइनस खत्म, a की वैल्यू 2 आ गई. a की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे x की जगह पे, मतलब x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट हो जाएगा. p ऑफ 2 इज इक्वल टू 14, सो p ऑफ 2 2 क्यूब 2 स्क्वायर k ऑफ 2 प्लस 4, यू कैन सी. एंड p ऑफ 2 किसके बराबर है, 14. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिमाइंडर 14 है. अगर फैक्टर होता इसका, दोबारा सुनो, अगर ये इसका फैक्टर होता तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पे क्या आता, शाबाश, 0 आता. तो ये, लेकिन क्योंकि रिमाइंडर है तो 14 यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो ये 2 क्यूब इज 2 क्यूब 8, अगेन 2 स्क्वायर 4 टू द 8, 2k plus 4, and after the simplification k is equal to minus 3. Okay, so this is the answer of question number 11. Now question number 13, there is a restriction that use the synthetic division. synthetic division कैसे यूज करते हैं वो भी सुनने आप लोग. अब कुछ मैट्रिकुलेशन में किया है आप लोगों ने. अच्छा, पहले 11 आपने किया है ना, तो बिल्कुल 10 और 12 बिल्कुल सेम है. ठीक है, 10 और 12 अटेम्प्ट करना आप लोगों ने. 13 देखो क्या, x इज इक्वल टू माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 28x minus 48 is equal to 0, and x is equal to minus 4, it should be minus 2. ये गलती है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है. ये x is equal to minus 2 है ये. ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. x is equal to minus 2. ओके, सो x is equal to minus 2 ये डिवाइजर बन गया. अब हम सिंथेटिक डिवीजन को करेंगे, कोफिशिएंट्स लिखेंगे हम पॉलिनोमियल के. x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 लिख दिया. x स्क्वायर, देयर इज नो x स्क्वायर, तो इट मीन्स दैट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0, so I have write it down. Then the coefficient of x is minus 28. Now you can see minus 28, and the constant is minus 48. Okay, means you can see x is equal to ये minus 2 है. ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, minus 2 है. minus 2 आगे डिवाइजर बन के, ये हमने कोफिशिएंट्स लिखे हैं पॉलिनोमियल के.
ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट. नाउ हाउ वी कैन डू इट. फर्स्ट डिजिट शुड बी सेम, मतलब जो भी यहाँ पे जो भी डिजिट होगा ना वो सेम कॉपी उतर जाता है नीचे. देन मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2. 0 -2 को हम प्लस माइनस करेंगे. 0 -2 हम करते हैं माइनस, 0 -2 मतलब माइनस करते हैं हम तो -2 बचेगा. और जो लाइन के नीचे जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, 4 यहाँ लिख दिया. इसको हम आपस में प्लस माइनस करेंगे, -24 आएगा. माइनस माइनस प्लस 24 2 ज़ा 48 एंड -48 इज 40, -48 प्लस 48 0. दिस इज द रिमाइंडर, लाइक फैक्टर थ्योरम और जो हम लोग पीछे किया ना रिमाइंडर थ्योरम में, ये रिमाइंडर बचा है. अगर रिमाइंडर 0 तो इसका मतलब ये x-2 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा. ठीक है, सो रिमाइंडर इज 0, सो इट मीन्स दैट x-2 इज द सॉल्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ दिस. ठीक है, सो नाउ यू कैन सी x इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन, सो x + 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका फैक्टर हो गया. ठीक है, सो अब हम इसके क्वोशंट लिखेंगे. अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन, व्हाई वी यूज सिंथेटिक डिवीजन टू डिक्रीज 1 पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. अब एक्स क्यूब से स्टार्ट था ना, इसकी डिग्री एक्स क्यूब थी. अब ये जो हमारे पास कोफिशिएंट आए हैं, क्वोशंट आए हैं, ये कोफिशिएंट आए हैं किसके, पावर 1 से. मतलब ये एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा. ये एक्स स्क्वायर होगा, फिर ये एक्स होगा, फिर ये कांस्टेंट होगा. नाउ यू कैन सी एक्स स्क्वायर 1 ज़ा एक्स स्क्वायर, -2x ज़ा -2x एंड कांस्टेंट इज सेम. ओके, नाउ जस्ट मेक द फैक्टर्स. -24 के फैक्टर्स बनाए, -6x + 4x. x इज कॉमन, 2 टर्म्स में कॉमन ले लिया, 2 टर्म में यहाँ पे कॉमन लेंगे. x इज कॉमन आ गया, x - 6, 4 कॉमन आ गया तो x - 6. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो ये आ गया कि माइनस हमने जो है ना वो कॉमन ली. ठीक है, तो x - 6 is same, x - 4. so what are the polynomial और what are the factors. एक तो ये आएगा x + 2, ये वाला फैक्टर आएगा और ये 2 फैक्टर्स निकाले. तो इसके 3 फैक्टर ये निकल गए, x + 2, x - 6, x - 4. इसके फैक्टर्स आप लोग खुद भी बना सकते हैं मैट्रिक कैलकुलेशन से. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट. Okay, now question number 16, find the value of a and b if -2 and 2 are the roots. Roots means factor. ठीक है, मतलब roots मतलब आंसर है, ये इसका फैक्टर सॉल्यूशंस हैं, फैक्टर्स हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, a और b की वैल्यू निकालनी. -2 and 2 are the roots of the polynomial of this and this. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि p of x is equal to x³ - 4x² + ax + b. ये हमारे पास p ऑफ x ले लिया. ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, तो x³ का पॉलिनोमियल क्या होगा 1, x² का -4, x का a एंड कांस्टेंट इज b. यू कैन सी 1 -4 a b. कौन कौन से रूट है, -2 और 2. ठीक है, -2 और 2 अगर रूट है तो इसका मतलब रिमाइंडर जो है ना, जो भी रिमाइंडर आएगा वो बराबर होगा 0 के. ठीक है, अगर ये इसके रूट गिवन है तो इसका मतलब जो भी रिमाइंडर होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. 1 हमेशा कॉपी सेम हो जाएगा, जो भी फर्स्ट डिजिट होगा एज इट इज कॉपी. 1 - 2 is -2, -4 - 2 is -6, -+ 6 to the 12, a + 12, a + 12 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 a + -24 and -2a + b -24 and this should be equal to 0 because -2 इसका फैक्टर है. Since x is equal to -2 is the root of p, so p of x is equal to 0. So ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली. हमने 2 वेरिएबल्स निकालने, a और b निकालना. इट मीन्स दैट वी हैव टू मेक 2 इक्वेशंस. ठीक है, सो एक इक्वेशन बनेगी -2 से और एक इक्वेशन बनेगी 2 से. अगेन सेम 1 - 4 a b आ गया और ये हमने 2 से हमने जो है ना ये बना ली, ये रिमाइंडर आ गई. ये भी 0 के बराबर होगा क्योंकि 2 भी रूट है. लाइक इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 भी जनरेट कर ली. अब 1 and 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो और a और b आ जाएगा. मतलब -2a + b है इज इक्वल टू 24, 2a + b है. तो अगर हम इसको जो है ना वो
ऐड कर देते हैं तो -2a + 2a कैंसिल हो जाएगा, b + b 2b हो जाएगा, एंड 24 एंड +8 जो है ना 32 हो जाएगा। सो b की वैल्यू 16 आ गई। इसको पुट कर दो 1 या 2 में, मर्जी है, एलिमिनेशन मेथड जो मैट्रिक में सीखा है, तो पुट कर देंगे आप, तो आपके पास a की वैल्यू -4 आ गई है। एंड द होमवर्क इज 15, दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 16. So I hope exercise 4.5 is clear to all of you. But if you have any questions, I am live to the WhatsApp group in your maths class. Thank you for attention. Allah Hafiz.